Good morning everyone. I hope you all are doing well. As you know, today our topic of discussion is typical development and I will explain a little about this. जब हम typical development की बात करते हैं और वो भी जब हम practical work से उसे जोड़ते हैं तो कुछ आसान तरीक़ों से समझना ज़रूरी हो जाता है. So when we say typical development, it simply means the normal development. How a person should grow and achieve the milestones in time. तो यहाँ जब टिपिकल डेवलपमेंट की बात करेंगे तो इसको सिंपल करने के सो वी कैन डिवाइड टिपिकल डेवलपमेंट इनटू 5 एरियाज और 5 डोमेन्स इन विच वी हैव मोटर डोमेन, स्पीच एंड लैंग्वेज, कॉग्निटिव डोमेन, सोशल डोमेन एंड इमोशनल डोमेन. First of all, we will talk about motor domain. Motor means in Hindi we call it गत्यात्मक, means गति से संबंधित, गति से related. Motor doesn't mean some machinery or what. Motor means when we work through our body parts, when we use movement to do our daily tasks and we grow and we gradually improve in our skills. So motor can be further divided. Now when we talk about different activities or skills in motor area, we talk about 2 areas. Motor development happens in fine motor and gross motor. First I'll talk about gross motor. Gross motor जो बड़े बड़े actions या movements होते हैं body के, उनको कहा जाता है. और ये मूवमेंट्स होते हैं हमारे उन बॉडी पार्ट्स के जो हमें मूव करने के लिए हेल्प करते हैं. फॉर एग्जाम्पल लाइक वी स्टैंड, वी सिट, वी कंट्रोल आवर हेड, वी यूज आवर हैंड्स टू पिक एंड वी वॉक, वी रन. All such things are under gross motor area, and the fine motor involves the use of fingers, wrists, elbows, and the major part. The smaller things that we do with our hands comes under fine motor skills. तो मोटर डेवलपमेंटल डोमेन के बाद आता है स्पीच एंड लैंग्वेज. बाद आने से मेरा मतलब ये नहीं है कि पहले मोटर डेवलपमेंट होगा फिर स्पीच एंड लैंग्वेज होगा. ये सारे डोमेन्स जो हैं ये एक साथ रो करते हैं और ये सिर्फ जन्म के बाद से नहीं, जन्म के पहले से चल रहे होते हैं. सो व्हेन द चाइल्ड इज इन मदर्स होम, he or she starts growing there and then, और बहुत सारा डेवलपमेंट प्रेगनेंसी के दौरान हो जाता है. तो अभी जो हम देखते हैं ये विजिबल डेवलपमेंट है जो जन्म के बाद आफ्टर बर्थ हमें दिखने शुरू होते हैं. तो स्पीच एंड लैंग्वेज, हमने मोटर डेवलपमेंट की बात करी कि ग्रॉस एंड फाइन होते हैं, लेकिन स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट कैसे पता लगता है. सो एज यू can make out, speech and language means related to talking or speaking or making use of words in sentences. तो यहाँ पर जब हम speech and language की बात करते हैं तो थोड़ा सा हमें पहले फ़र्क करना है कि what is speech and what is language. ये दोनों चीज़ें कभी कभी interchangeably लोग यूज़ कर लेते हैं, which is not right. Speech means the sounds that are produced, our voice, and how we pronounce things and how clearly we speak. तो इसमें जो इन्वॉल्व होता है ये पूरा ओरोमोटर सिस्टम इन्वॉल्व होता है. हमारे वोकल कॉर्ड से लेके चीक्स, टीथ, टंग, लिप्स, एवरीथिंग इज यूज्ड इन स्पीच. तभी हम साफ बोल पाते हैं. अगर इसमें कहीं भी कुछ प्रॉब्लम है तो उस बच्चे को या उस व्यक्ति को स्पीच इशू होगा, ना कि लैंग्वेज इशू. Now how it differs from language? Language comes from head, the brain. हम क्या सोचते हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग कितना अलाउ करती है, तब हम लैंग्वेज फॉर्म कर पाते हैं. आवाज़ें कोई भी निकाल लेगा अगर स्पीच सिस्टम ठीक है, ओरोमोटर सिस्टम ठीक है, लेकिन उसको शब्दों में डालना, उसे मीनिंगफुल बनाना वो लैंग्वेज यानी कि दिमाग करता है और लैंग्वेज को फॉर्म करता है. ओके, सो नाउ वी विल टॉक अबाउट लैंग्वेज एंड द टाइप्स ऑफ लैंग्वेज. So when we talk about the different types of languages, we can categorize it in 2 ways. I'll show you how. Like this. First, we can categorize it as verbal and non-verbal, and the second we can categorize as receptive and expressive. So verbal means which involves some kind of words and some symbols
some language that is denoted through symbols like Hindi, English, and that we speak. Non-verbal means the body language, the gestures, the facial expression, lip movement, and indications. So all these somehow communicate our thing to another person. So we can do this with the help of symbols, that is any kind of language which has symbols like Hindi, English, Spanish, French, whatever. And if we don't have any kind of language which is verbal, we can always communicate through indicating towards something, जिसे हम सांकेतिक भाषा बोलते हैं ना. We indicate towards things, या हम फेस पे गुस्सा या हंसी लाकर भी बताते हैं कि हम क्या फील कर रहे हैं, और हम अपनी बॉडी लैंग्वेज से भी कुछ चीज़ें बताने की कोशिश करते हैं. तो ये सब नॉन वर्बल में आता है. दूसरा कैटेगराइजेशन जैसे मैंने बताया लैंग्वेज का है रिसेप्टिव एंड एक्सप्रेसिव. रिसेप्टिव मीन्स दैट वी रिसीव, जो हम लेते हैं. एक्सप्रेसिव दैट वी से. तो जब भी लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है रिसेप्टिव कम्स फर्स्ट एंड एक्सप्रेसिव कम्स लेटर. जब हम किसी बच्चे को देखते हैं, छोटे बच्चे को, तो क्या वो जन्म से बोलना शुरू हो जाता है? द चाइल्ड नेवर स्पीक्स. द चाइल्ड फर्स्ट स्टार्ट स्माइलिंग, सीइंग ऑन द फेसेस एंड स्माइलिंग, एंड इफ यू आर एंग्री देन हिज एक्सप्रेशन चेंज. So all these things he is understanding that language, he is receiving it first and later he starts expressing. So always reception comes first and expression comes later. जब बच्चा बचपन से कुछ रिसीव नहीं कर पा रहा है, से फॉर एग्जाम्पल अगर उसने भाषा बोलती भी सुनी ही नहीं है ना, जैसे कोई हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चा होता है जो नहीं सुन पा रहा है, उसके कानों में कोई प्रॉब्लम है, उसके सुनने की क्षमता ठीक नहीं है, तो ऐसे में वो कोई वर्ड्स सुनता नहीं है और उसकी वजह से क्या होता है कि वो बोल भी नहीं पाता है. इसी तरह से जो बच्चा देख नहीं पाता है वो बहुत सारे इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर पाता है. So after discussing speech and language domain, now we move forward to cognitive domain. Cognitive is related to understanding, cognition, higher level thinking, all these things. तो सोचना, समझना, प्रॉब्लम सॉल्व करना, ये सारा इसके अंदर आता है. कॉग्निटिव जो डोमेन है वो बहुत जल्दी से नज़र नहीं आता. जैसे कि मोटर डेवलपमेंट एकदम दिखता है कि बच्चे ने नेक कंट्रोल शुरू कर दिया है, वो अपने आप से उठकर बैठ जा रहा है, या वो घुटनों पे चलने लगा है, क्रॉलिंग हो गई है, या विदाउट सपोर्ट स्टैंडिंग हो गई है, विदाउट सपोर्ट रनिंग एंड वॉकिंग हो गई है. All these things you can see and it looks like that motor development happens first and then cognitive happens later, and it's not visible, it's very vague, but actually all domains work together and development goes hand in hand. One determines the other. Say for example, if cognition is not developed, the child won't be understanding as to how to skip an obstacle. If there is a hurdle, there is a barrier in his way, how he should solve that problem. If cognition is not there, he is not going to do, and people see that he is not able to walk. So this is how it is linked. So cognition, first of all, it looks like when the child starts understanding, when we say that he has achieved object permanence. Now what is object permanence? Object permanence is a very major milestone which appears at the age of 8 months, around 8 months. In some children it appears a little early, in some it appears a little late. As the name suggests, object permanence, it is like if the object is lying here, say for example this sketch pen, it is lying here and nobody moves it from here, it won't move by itself. So the object is permanent until and unless it is moved. When this understanding develops in the child, we say that he has achieved object permanence. So how we test this? Say for example, if we put a ball under a mat and we cover it and we take the child on in a different place and then bring him back and leave it here, or leave the child there, तो वो क्या करेगा? वो पहले उस मैट को उठा के देखेगा, इसके नीचे बॉल थी, वो वहीं होनी चाहिए, है ना. अगर वहाँ से गायब है तो वो एक बड़ा हैरानी वाला एक्सप्रेशन देगा. तो यहाँ से पता लगता है कि उसका ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप हो गया है. सो दिस इज़ हाउ वी स्टार्ट नोइंग अबाउट द कॉग्निटिव डोमेन. इसके अंदर और बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग.
कोई भी प्रॉब्लम जो एज अप्रोप्रिएट है उसको वो कैसे रिजॉल्व करेगा, अंडरस्टैंडिंग, चीज़ों को समझना, रीजनिंग एंड लॉजिक, किसी भी चीज़ के पीछे एक लॉजिक या तर्क को समझना, एक लॉजिकल थिंकिंग टेक्स प्लेस, एंड देन मेमोरी विच कंटेन्स रिटेंशन एंड रिकॉल. द पर्सन हु हैज़ लर्न समथिंग टुडे may not forget it as very soon. So retention and recall, retaining an information and then recalling when needed in a different situation. ये एक बहुत मेजर इसका इंडिकेटर है कॉग्निटिव डेवलपमेंट का. देन वन मोर थिंग इज देयर, अटेंशन एंड कॉन्सेंट्रेशन. नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अटेंशन एंड कॉन्सेंट्रेशन. Attention is attending to things. Say for example, what is going on around in my surrounding is I'm paying attention to. Concentration is keeping my attention sticked to one activity for an appropriate duration according to age. So the attention span of a child depends on the age also. So it is not like we can compare an attention of a child with an adult person. Say for example, an attention span of a 1-year-old child is for 1 minute, for 2 years old child is for 2 minutes, and so on. 3 years will have an attention span of 3 minutes. So we cannot compare any of these. Another thing that comes into consideration here is the interest level. हमने देखा होगा जिसमें भी हमारा इंटरेस्ट ज़्यादा होता है उसमें हम थोड़ी ज़्यादा देर तक कंसंट्रेट कर पाते हैं, और जिसमें इंटरेस्ट नहीं होगा हम कितना भी चाह लें वो उस पर हमारा कंसंट्रेशन बहुत जल्दी टूट जाता है. तो हमारा जो अटेंशन स्पैन है, जो ड्यूरेशन है, दैट डिपेंड्स ऑन आवर लेवल ऑफ इंटरेस्ट फॉर दैट एक्टिविटी ऑल्सो. Cognitive development can be explained like this. Can you see? Cognitive domain, we have understanding, we have problem solving, we have attention and concentration, reasoning or logic, and memory, which includes retention and recall. Now I will move further with 2 other domains, and I will take this in one discussion, that is socio-emotional development. Why I am taking it together? Because they overlap a lot. बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी है समझना कि सोशल बिहेवियर में इमोशंस का बहुत बड़ा रोल है, और सोशल होने की वजह से इमोशंस पर बहुत बड़ा असर पड़ता है. तो ज़्यादातर जब भी हम लोग इन टर्म को यूज़ करते हैं तो वो हम लोग सोशल इमोशनल या सोशो इमोशनल कहकर ज़्यादा बात करते हैं. बहुत कम ऐसा होता है कि सोशल टोटली इंडिपेंडेंट हो इमोशन से और इमोशंस टोटली इंडिपेंडेंट हो सोशल बिहेवियर से. तो इसलिए मैं इन दोनों को साथ में ही समझाऊंगी. इसमें कुछ इस तरह की चीज़ें शामिल होती हैं, जैसे सोशल डेवलपमेंट की जब हम बात कर रहे हैं तो उसमें सोशल स्माइल से सबसे पहले पता लगता है कि बच्चा अपनी सराउंडिंग में लोगों को पहचान रहा है कि नहीं. रेसिप्रोकल स्माइल, अगर उसकी तरफ कोई देखकर मुस्कुरा रहा है तो वो जब वापस मुस्कुराता है तो वो सोशल स्माइल है. अकेले में बिना किसी दूसरे व्यक्ति के साथ होने पर अगर कोई मुस्कुराता है तो वो सोशल स्माइल नहीं होती है. लेकिन ये डेवलपमेंट हम लोग देखते हैं कि बच्चा इतना बड़ा हो गया है, अभी उसको सोशल स्माइल देना चाहिए, लेकिन कभी कभी बच्चे ऐसा नहीं करते हैं. तो बहुत सारे क्वेश्चंस उठते हैं जो हम बाद में असेसमेंट में बात करेंगे कि उसको कोई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिस वजह से वो शायद देख नहीं पा रहा है उस स्माइल को. जैसे हमने कहा था, विजन प्रॉब्लम हो सकती है. तो सोशल स्माइल एक बहुत बड़ी चीज़ है जो कि सबसे पहले सोशल डेवलपमेंट को इंडिकेट करती है. इसके अलावा भी बहुत सारे माइनर इंडिकेटर्स होते हैं, लेकिन ये मोटी मोटी चीज़ें हैं जो परिवार में लोग देख पाते हैं. दूसरी चीज़ होती है इमोशंस. इमोशंस जैसे कि हमने स्पीच एंड लैंग्वेज में बात करी थी कि एक्सप्रेसिव और रिसेप्टिव दोनों होती है. इसी तरह से इमोशंस को अंडरस्टैंड करना, अंडरस्टैंडिंग इज़ वन वे एंड देन एक्सप्रेसिंग इज़ अनदर. सो द चाइल्ड शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द इमोशंस. अगर कोई गुस्से से देख रहा है तो उसको महसूस हो जाना चाहिए कि समथिंग इज़ रॉन्ग और मुझे सीरियस होना है, मुझे इस पर हंसना नहीं है. तो ये अंडरस्टैंडिंग अगर आ रही है तो हम कहते हैं वो टिपिकली ग्रो कर रहा है. और साथ साथ में अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना, गुस्से की बात पर गुस्सा करना, रोने की बात पर रोना, हंसी की बात पर हंसना, ऑल दीज इंडिकेट्स द इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड. Then we have some social skills which make us understand that the child is growing typically. For example, if the child is able to share his things with another children, तो शेयरिंग एक सोशल स्किल है जो कि डेवलप टाइम के साथ होनी चाहिए. उसके साथ ही टर्न टेकिंग, वेटिंग फॉर
वंस टर्न कि अभी मेरी बारी आएगी इसलिए मुझे रुकना है, मुझे छीनना नहीं है, या मुझे किसी को धक्का देकर अपने काम नहीं कर लेने हैं कि मैं पहले कर लूँ। तो वो वेटिंग स्किल्स होना, वेटिंग फॉर टर्न एंड टर्न टेकिंग, ये सब चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। अनदर थिंग इज़ दैट द चाइल्ड शुड बी फ्री ऑफ अननेसेसरी एंग्जाइटीज़ एंड फियर्स। बिना बात के कोई डर या बहुत ज़्यादा अंदर चिंता होना वो ठीक नहीं है। जैसे कि एक छोटा बच्चा है, अगर वो इस वजह से चिंतित है कि कोई अनजान उसे अपनी गोदी में ले रहा है तो दैट इज़ ओके, ही इज़ डिस्क्रिमिनेटिंग बिटवीन द नोन एंड स्ट्रेंजर्स, ये ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं होता है तो चिंता की बात होती है। तो एंग्जाइटीज़ होना, एक डर होना एक लिमिट तक ठीक है, लेकिन वो ज़रूरत से ज़्यादा होना, जिसे हम एक प्रॉब्लम की तरह से बोलते हैं सेपरेशन एंग्जाइटी, जो बच्चे अपनी मम्मा से दूर नहीं हो पा रहे होते हैं, तो वहाँ पर फिर उनको जांच की ज़रूरत होती है और आगे ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। तो ये सब सोशल बिहेवियर है जिसमें इमोशंस भी इन्वॉल्व हैं। और साथ साथ में एक बहुत मेजर इंडिकेटर होता है आई कॉन्टैक्ट होना। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा डरता है या उसके विजन में कोई प्रॉब्लम है या उसके अंदर किसी तरह की कोई पर्टिकुलर डिसेबिलिटी है, तो उसमें वो बच्चा आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं कर पाता है, क्योंकि ये सोशल बिहेवियर है, इसके अंदर भी इमोशंस का इम्पैक्ट है। अगर बच्चा बहुत डरता है तो वो आई कांटेक्ट नहीं बना पाएगा। यूजुअली हम लोगों के साथ भी ऐसा होता है, कभी जिनसे हम बहुत डरते हैं तो हम आई कांटेक्ट नहीं करते हैं, आंखों में नहीं देख पाते हैं सामने वाले की। तो दिस इज़ हाउ वी डिटर्मिन द सोशल इमोशनल डेवलपमेंट। अभी So this is the social emotional development that we just discussed.